हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे बहुत समय से कि कुछ और अच्छे हॉरर एक्सपीरियंसेस मुझे आपके सामने लेकर आने चाहिए। कुछ इसी तरीके का ये वीडियो है जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इसमें भी रियल सीसीटीवी फुटेजेस हैं, अवेलेबल हैं, और उनको देखकर आप खुद ही जज कर सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको कितनी रियलिस्टिक लगती हैं। और मेरा जो पिछला वीडियो है वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मतलब मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और वीडियोज़ इस तरह के बनाइए। तो मैं इस तरह के कुछ और वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपने इसको पसंद किया, तो मैं रेगुलर बेसिस पर भी इस तरह की वीडियोज़ ला सकती हूँ। तो फिलहाल चलते हैं अपने पहले वायरल वीडियो की तरफ, जिसमें ऐसा लगता है कि एक पैरानॉर्मल घटना हो रही है एक महिला के साथ, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। टिकटॉक पर ये वीडियो पोस्ट हुआ था मामा डोजियर नाम के एक अकाउंट से। इनका एक बेटा था जिसका नाम था बो, और एक डॉग था जिसका नाम था हिप्पो। इनका ये जो डॉग था एकदम शांत था, इसके साथ इनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है जिससे इंटरनेट पर बहुत सारी बातें होने लगती हैं। एक दिन अचानक से ही इनका डॉग एक पर्टिकुलर स्पॉट की तरफ बहुत ज्यादा भौंकने लगता है, जहां पर कुछ सेकंड्स पहले ही ये महिला और उनका बेटा यानी कि बो बैठे हुए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था बल्कि दूसरी बार हुआ था, और तब इस महिला ने इस सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया और अपने चैनल मामा डोजियर पर पोस्ट किया था। इनको शुरुआत में ऐसा लगा था कि हो सकता है कि पलंग पर कोई ऐसी चीज हो जिससे इनका डॉग डिस्टर्ब हो रहा हो। उन्होंने सारी चीजें हटा दी थी, लेकिन उसके बाद भी इनका डॉग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। आप खुद ये सारी की सारी क्लिप देख सकते हैं कि इस महिला ने अपने अकाउंट पर क्या पोस्ट किया था। Well, I was in the kitchen making a breakfast sandwich, and I swear to God, I thought I heard steps, right? And I was like, I'm fucking tripping. It's probably just Hippo and me walking together, and it's just the sounds, right? Well, we come into my room, Bo is asleep, swaddled in his boppy, and Hippo refuses to lay down. This is how it starts. Don't mind my house, it's laundry day, okay? So it's messy. Then I pick up Bo, and he does this. I've literally picked up every item off that bed, and he continues to stare directly at whatever he's staring at right here. It's okay, boy. It's okay. There's nothing there. I've never seen him like this before. He's never been aggressive at all before. The only time I've ever heard him growl is when I'm like playing tug of war with him. Good boy. Good boy. What is that? What is it? And like, I know our house is haunted, right? We've had like some spirits here before that we've made leave, but like, I hear it, I see it out of the corner of my eye, like it makes things go missing, but it's never really messed with any of us. But this is like the fourth time that Hippo's reacted to it. The first time was like a couple days after he got here when we first got him as a puppy, and he was like out in the living room, and I heard him bark, and then like Looney Tunes run on the hardwood floor and run into the room, and he stood right here in my doorway looking out towards the living room for like a couple seconds, and then all of a sudden like backed up hella fast and ran into the bed. So like that was the first time. I've heard him barking at something in the house, and there's nothing like really been there, but not as intense as this. But like Hippo obviously sees it, and what freaks me out about it is that it was right next to where Bo and I were sitting. It was right next to my baby. And obviously it's not something that is friendly or something like that, because I feel like I've never really gotten a negative vibe from it, but dogs have a pretty good nose for if something's nice or not, especially bullies, in my opinion. And now he is just following me everywhere I go in the house. Everywhere. He like won't leave my side. Not that I mind, I love my pup, but I don't want him to be afraid. I don't want you to be afraid. You okay? You're a good boy for protecting mama and baby. Yes, you are, but I don't want you to be afraid, Mr. Man. My poor puppy. Oh, Tommy. Oh my God. अब इन्होंने डिसाइड किया कि अपने घर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, और अब आप खुद देखिए कि इस सीसीटीवी कैमरा ने क्या फुटेज रिकॉर्ड की है। इस फुटेज में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स जैसी चीजें दिखाई देंगी, जो कि रोशनी के कण जैसे लग रहे हैं, रोशनी के पार्टिकल्स लग रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये केवल डस्ट पार्टिकल्स हैं,
इनका पैरानॉर्मल से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इनका जो डॉग है ये इन पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है बार बार जागकर। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनको ऑर्ब्स कहा जाता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स हैं क्योंकि ऐसे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इनमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस, स्पिरिचुअल प्रेजेंस या पैरानॉर्मल 100% जुड़ा होता है। इनका डॉग बार बार इन ऑर्ब्स को नोटिस भी करता था, इनको देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था और बार बार वो विंडो से बाहर भी देख रहा था। हालांकि इन लोगों ने जूम करके भी देखा तो विंडो के बाहर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। और ये जो डस्ट पार्टिकल जैसी चीजें हैं ये अपना रिफ्लेक्शन दीवारों पर भी छोड़ रही हैं, जो कि जनरली होता नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी माना कि ये बाहर से आता हुआ रिफ्लेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को केवल श्रग ऑफ कर दिया कि ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, जो मैंने क्लिप आपको दिखाई, इसमें इस महिला का कहना है कि इस घर में पहले भी पैरानॉर्मल चीजें हो चुकी हैं और वो पहले भी इस घर को ठीक करा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से इनके घर में डिस्टरबेंस होने लगा था और इसको समझने के लिए ही इस महिला ने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था कि हो सकता है कि कोई समाधान निकले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एक मदर ऑनलाइन एक क्लिप शेयर करती है और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। तो वो अपने सिक्योरिटी कैमरास जब चेक करती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके लिविंग रूम में कुछ हलचल हो रही है। वो बार बार इस फुटेज को चेक करती है, जूम कर करके देखती है और जब उसे ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ गड़बड़ है तो इस क्लिप को ऑनलाइन शेयर करती है। लेकिन उसने ये भी बताया जब उसने इस क्लिप को शेयर किया कि इससे पहले भी उसको बहुत सारा कुछ अजीब लग रहा था इस घर में। स्पेशली उसके बच्चों के टॉयज के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उसके बच्चे के कुछ टॉयज अपने आप ऑन हो जाते थे, अपने आप ऑफ हो जाते थे और कुछ ना कुछ उनमें हलचल होती रहती थी। अब किसी को भी ऐसा लग सकता है कि कोई भी टॉय कई बार अपने आप ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लिच हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें डे आफ्टर डे होती जा रही थी। एक टॉय को ऑफ करती थी तो कई बार दूसरा ऑन हो जाता था। और उससे भी बड़ी बात थी कि इसकी जो डॉटर थी वो ये दावा करती थी कई बार कि उसका एक टॉल फ्रेंड है इस घर के अंदर मौजूद है। और उसकी वो जो डॉटर थी वो अपनी टूटी फूटी भाषा में बताती थी कि उसका वो जो फ्रेंड है वो कहाँ पर मौजूद है। तो अक्सर उसकी मौजूदगी की जो जगह वो बताती थी वो टॉयज के पास ही होती थी, कई बार लिविंग रूम में होती थी। तो ये सुनकर वो महिला बहुत ज्यादा घबरा गई थी ऑब्वियसली। तो इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो सिक्योरिटी कैमरास को चेक करेगी। और तब वो पाती है कि एक बार जबकि वो अपने दूसरे बच्चे के रूम में थी तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा था, यानी कि लिविंग रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा था। और ये बाद में उसने सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में देखा और बाद में उसने फुटेज शेयर भी की, जिसको आप खुद देख सकते हैं। इस सिक्योरिटी फुटेज के एकदम लेफ्ट में आप देखिए ध्यान से कि ऐसा लग रहा है जब उसने इस फुटेज को चेक किया कि उसके बच्चे के प्ले पेन के पीछे से कोई झांक रहा है। और जिस समय ये हुआ था हॉल से एक बर्तन के गिरने की भी आवाज आई थी। तभी उसने इस फुटेज को चेक किया था। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर जो अलमारी है उसमें से एक बर्तन अपने आप बाहर गिरता है और ये सारी यानी ये दोनों चीजें एक साथ हुई थी। जैसे ही वो एंटिटी वहां से झांकती है उसी समय वो बर्तन अपने आप बिना किसी बाहरी फोर्स के गिर जाता है। तो ये वही चीज थी जो कि उसके डॉटर को दिख रही थी, वही एंटिटी जिसको अपना फ्रेंड बता रही थी, या एक कुछ और ही था। उनके घर में वाकई में कोई घुस आया था। लेकिन जब उसने चेक किया सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। इस महिला को कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले और बाद में इस फुटेज को उसने ऑनलाइन शेयर किया। तो आप बताइएगा इस फुटेज के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वीडियो की तरफ। ये वीडियो एक महिला ने रिकॉर्ड किया था जो कि अपने बेबी के बेड की तरफ बढ़ी थी। उसका एक क्यूट सा वीडियो
कैप्चर करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंकफुली सब कुछ उस बच्चे के साथ ठीक था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। वो बच्चा एक ब्रोकन डॉल की तरह लग रहा था, जैसे कि कोई ब्रोकन डॉल बेड पर पड़ी हुई हो। तो कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये तीनों वीडियोस आपको कैसे लगे, और आपको इस तरह की वीडियोस देखना, इस तरह की घटनाएं सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।